Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. For Vinod Kumar Datta, hardly a day passes when he does not go to meet his childhood friend Amarnath Sudan in Jammu. Their parents came to Jammu from Mirpur in PoK at the time of partition. They belonged to rich families but were forced to leave behind their properties and start their lives back from scratch in Jammu. Life was tough for them. Sudan, now in his 80s, became a driver, and Datta, in his 70s, was a government employee. When they meet, they often talk about the old times and their PoK friends that have died over time. Their failing health a constant worry. ऐसे बुजुर्ग है, मेरे ख्याल में 80 साल के हो गए हैं बिल्कुल. अब तो 80 साल का जो आदमी हो जाए, जवान तो रहेगा नहीं, कमज़ोर तो दिन ब दिन होएगा. तो इनसे मैंने ये पूछा, इन्होंने खुद कह दिया कि मेरा रंग ना ब्लड काला हो गया. वो समझ नहीं पाए काला का मतलब होता है गाढ़ा हो जाना. तो फिर डॉक्टर दवाई देते हैं, यार आपकी ये खून आपका गाढ़ा हो गया और खून कम हो गया, जिसको हम बोलते हैं कि अनीमिया हो जाना या कुछ, हम उस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं. तो इन्होंने दवाई खा रहे हैं. फिर इनको मैं सजेस्ट कर रहा था कि 5-7 सब्जियां लेके, मेरे को भी हो गया था ऐसे, तो आप उनका सूप निकाल के पीजिए, आपको फ़र्क पड़ेगा. फ़र्क पड़ना ना पड़ा, लेकिन इनको एक इंकरेजमेंट तो दे रहा हूँ ना, एक बुजुर्ग होने के नाते. एक दूसरे को आप सहारा देते हो? सहारा देते, बिल्कुल सिंपैथी है अभी भी. हाँ जी, बिल्कुल कोई शक नहीं इसमें. The government statistics say there are around 36,000 families of the PoK refugees in Jammu region and some other parts of the country. Some refugee organizations, however, claim their total number as over 1.2 million. Unlike West Pakistani refugees, they had the voting rights. However, 24 seats reserved for areas under Pakistani occupation have always remained vacant in J&K Assembly. Modi government promised help. 5 years ago, a scheme was launched for giving a financial package of 5 lakh rupees to each family. But while most families got the finances, there are some, like Kailash Devi, that did not receive the money. She shows us her bank passbook to prove her point. कोई बोलेगा डाल दिए, जाओ आगे जाओ, तो बोलते हैं कुछ नहीं आपका आया, क्या तंग कर रहे हो मुझे, कुछ नहीं आया. तो परिवार में तो ठीक है, परिवार 2 लड़के हैं, 2-3-4 पोते हैं, ठीक है, 8-10 बंदे हैं घर के. क्या काम करते हैं? काम तो कुछ भी नहीं है, बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं. छोटा है तो 2-2:30 बजे रात जाता है, उसको अखबार का काम है, 1 रुपया मिलता है, क्या लेके आता है. ये कहना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ करना चाहिए कि कोई हालत को थोड़े रास्ते पर आ जाए, जो इतनी हालत ख़राब है ये ठीक हो जाए थोड़ी. तो आपको लगता है वो भूल गए हैं, अब जो हुआ वो भूल ही गए, और क्या, कितना चिर हो गया. धक्के खाते हैं, रोज़ जाते हैं बैंक में, उधर वाले बोलते हैं बैंक में जाओ, जब वो बेचारे बीमार बैंक में जाते हैं तो बोलते हैं क्या इधर कुछ भी नहीं है, कोई डाला हुआ कुछ भी नहीं है, क्या करें फिर, मुश्किल है ना. Now, for the first time, there is a glimmer of hope for them. The recent J&K Delimitation report recommends nominated seats for PoK refugees, much like the Puducherry model, although it does not specify the number of the members that will be nominated. Those fighting for the rights of PoK refugees like Rajiv Chuni say it's a good beginning, but more needs to be done. Chuni's parents were also PoK refugees from Mirpur. His grandfather was killed when they were crossing into India at the time of partition. He shows us the papers and says they had huge land holdings in Mirpur, the land that's now gone under the Mangla Dam.
तो हम जो इन्होंने बनाए ये डिलिमिटेशन कमीशन, हम इनसे मिले, रंजना देसाई जी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा चूँकि हमारा जो स्कोप है वो बड़ा लिमिटेड है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में काम करते हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते। और कॉन्स्टिट्यूशन जो बना है 5 अगस्त 2019 को, उसमें इन्होंने 24 सीटों को दोबारा लॉक कर दिया है, बंद रखा है। तो लिहाजा हमने उन 90 सीटों पर फैसला करना है जो इन्होंने बनाई हैं, आपकी इन्होंने बंद रखी हैं। तो लिहाजा जब तक गवर्नमेंट कोई अमेंडमेंट नहीं लाती, हमने कहा ये तो गलत है, हमें नुमाइंदगी मिलनी चाहिए। आप एक काम कर दीजिए, आप एक रिकमेंडेशन कर दीजिए गवर्नमेंट को कि आपसे अगर कोई भूल हो गई है, छूट गया है, कुछ गलती हो गई है, आप इसको अमेंड करिए तो इन लोगों को नुमाइंदगी मिले। और इसके, मैं कहता हूँ इसके 2 लाभ हैं। लाभ ये है, एक तो आप कहते हो जी वो इलाका हमारा है, पूरी दुनिया में हम डोल पीटते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर हम कुछ नहीं करते। पीछे हमने मुजफ्फराबाद का हाल बताना शुरू किया, वहाँ पर मौसम कैसा है, ये तो गूगल से भी पता लग सकता था। लेकिन अगर हम सीरियस हैं, संजीदा हैं, तो हमें चाहिए कि हम उन सीटों को भरें जो खाली हैं। और कैसे भरें? कोई हवा में नहीं भरनी है, मेरे लोग यहाँ मौजूद हैं। और मुझे चुनाव आयोग में भी हम गए और ये डिलिमिटेशन कमीशन के पास भी गए, उन्होंने कहा इस पर चुनाव कैसे हो सकते हैं। मैंने कहा बड़ा आसान तरीका है, फार्मूला आप खुद ही बना चुके हैं। जो कश्मीरी पंडित कश्मीर से निकला, चाहे हब्बा कदल से, चाहे वो अमीरा कदल से या कहीं और से, उसको आपने एम फॉर्म बना के दिया। और आज भी जब चुनाव होते हैं उसके रिस्पेक्टिव असेंबली सेगमेंट के लिए, वो देश भर में बैठकर अपने रिस्पेक्टिव सेगमेंट के लिए वोट करता है और उसी सेगमेंट में वो गिने जाते हैं। तो मेरा वोट जम्मू में बैठकर मीरपुर के लिए क्यों नहीं पड़ सकता, कोटली के लिए क्यों नहीं जा सकता, बिम्बर के लिए क्यों नहीं जा सकता, मुजफ्फराबाद, हटिया, दुपट्टा, इन जगह के लिए क्यों नहीं जा सकता, पलंदरी और बाग के लिए क्यों नहीं जा सकता। But analysts say the move to give seats to PoK refugees in assembly has the potential to tilt the numbers in the favor of ruling party in the center. The delimitation report has thrown the ball in the government's court that will also eventually determine the exact strength of J&K assembly as far as numbers are concerned. जम्मू कश्मीर के पास असेंबली में 75 सीटें थी कि अगर ये जम्मू कश्मीर पूरा होता तो 100 सीटों की असेंबली हुआ करती। अब वो इसमें सिंबॉलिज्म बहुत ज़्यादा था, उसमें एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, एक दुनिया के लिए स्टेटमेंट थी, एक पाकिस्तान के लिए स्टेटमेंट थी, एक पूरे मुल्क के लिए स्टेटमेंट थी और एक जम्मू कश्मीर के लिए स्टेटमेंट थी कि वो पार्ट है जम्मू कश्मीर का, जब वो रिस्टोर होगा तो। लेकिन उसके ऊपर कभी इलेक्शंस नहीं हुए, वो सीटें हमेशा खाली रहा करती थी। बाद में एक सीट रीएडजस्ट करके 24 सीटें कर दी वो, तो वो खाली रहा करती थी। अब जब ना डिलिमिटेशन कमीशन ने इसके ऊपर कोई क्लैरिटी दी है, ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई क्लैरिटी है, ना ही कोई इसके ऊपर पॉलिटिकल क्लैरिटी है। कल अगर गवर्नमेंट कहे कि हम 24 सीटें बाय वे ऑफ नॉमिनेशन जो है वो सिंबलिज्म को फुलफिल करने के लिए हम करना चाहते हैं, तो मैं उसको कम्प्लीटली रूल आउट नहीं कर सकता। लेकिन नंबर ऑफ सीट्स जो है मुझे लगता है कि जब गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगी तो दैट्स गोइंग टू बी सिग्निफिकेंट, क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशन है पीओके रेफ्यूजीज की, वो तो कश्मीरी माइग्रेंट से जो है कई ज़्यादा है। If nominated members of PoK refugees sit in the Jammu and Kashmir Assembly for the first time, it will be a big boost for this community which has been fighting for its rights for decades altogether. But how is it going to change the political dynamics of Jammu and Kashmir, and will this be in the end advantage to the ruling party at the center? That's the big question. In Jammu with Haris Togo, Zafar Iqbal for Mojo Story. It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.